Hi everyone, welcome back to Control plus Alt plus Youth, the podcast where we dive into real stuff that matters to both Gen Zs and young professionals. From career chaos to creative breakthroughs, through mental health and everything in between. We have got it all. Miss Kashish, welcome to the podcast. Let's start the line. Tell us about a little bit about yourself and how did your journey with psychology begin? So firstly, thank you for the wonderful introduction. So I am brought up in a joint family, and when you live with a lot of people, you observe different behavioral patterns. So from there, I often used to think why somebody in my family is behaving the way they are behaving. Additionally, my brother is a special child with autism. So when I used to visit to different doctors, psychologists with him, I could understand how important this profession is, especially for people who are actually suffering from mental illnesses. So from there, I started to think about doing something in the similar field. Although in India it's not very well developed, it's booming, but still I thought that if I have slightest of the opportunity to make somebody's life better, then I would obviously grab it. That's great, ma'am. Was there any moment or experience जब आपको लगा like मेरे को यही करना था ना achieved it? So I remember we, used to take my brother for therapies. So I remember that, as soon as we used to visit there, and when we used to see slightest of movement or slightest of improvement in him through occupational therapy, that used to be very happy moment for all of us in our family, right? So the idea that an individual or a professional holds so much of power that they can bring smile and joy to the entire family was something that was very exciting, and that is when I decided that okay, I really want to pursue psychology. I want to become a psychologist and take this all. That's great. तो आप बहुत सारे ऐसे यंग प्रोफेशनल्स और बच्चों के साथ काम करते हो NUS में एंड इन डिफरेंट फील्ड. तो आपको क्या लगता है आज का यूथ ऐसा कौन सा मेंटल हेल्थ चैलेंज है जो सबसे ज्यादा फेस कर रहा है? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया कल्चर इतना ज्यादा हो रहा है एंड हसल कल्चर इतना ज्यादा में हर जगह दिख रहा है. तो आपको ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो आज का यूथ सबसे ज्यादा फेस कर रहा है? सी, अगर मैं आपको बहुत थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से समझाऊं तो थ्योरीज कहती हैं इन दिस एज ग्रुप we face the major confusion with regards to our own identity, be it who you are, what your worth is, how much efficacy you have, what is your purpose of living, also as to are you an individual alone or you are described by others surrounded by you. So one thing I could see is that everybody is struggling with emotional regulation because they are not clear about who they are, what is their identity, what is their purpose. Right, so I think this is one of the major issues, that when somebody couldn't figure out who they are, that is where anxiety kicks in, depression kicks in, because every time you are comparing, analyzing and trying to find out that one thing that defines you, but you can't, because in our country we don't take mental health very seriously. So these concerns are मतलब ऐसा बोला जाता है बच्चों को कि अरे कोई बात नहीं, ऐसा भी तुम बड़े होगे समझ आ जाएगा, अभी तुम छोटे हो इतना मत सोचो, तुम्हें किस बात का स्ट्रेस है. बट यू डोंट नो कि आप जिस 13-14 साल के बच्चे को कह रहे हो तुम्हें किस बात का स्ट्रेस है, वो ये सोच रहा है कि क्या मेरा जीना वर्थ इट है एट फर्स्ट प्लेस, इज इट रियली रिक्वायर्ड फॉर मी टू लिव. उसके दिमाग में उस लेवल के फंडामेंटल थॉट्स है, बट आपको लग रहा है कि बच्चा इसका क्या ट्यूशन कॉलेज स्कूल का प्रॉब्लम है, बट दैट्स नॉट हाउ इट इज. सो आई थिंक द आइडेंटिटी वी निग्लेक्ट एंड टेकिंग सीरियसली यूथ्स मेंटल हेल्थ आर मेजर चैलेंजेस विच आई फील. जैसे आपने बोला कि पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चों पे इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है कि छोटे ही तो है, या फिर अगर कोई भी बच्चा कोई ऐसे लाइक मेंटल हेल्थ से इशू से गो थ्रू कर रहा है, तो अगर वो किसी साइकियाट्रिस्ट को भी रीच आउट करना चाह रहे हैं तो सोसाइटी हो गई या फिर फ्रेंड्स हो गई, वो टैबू है हमारी सोसाइटी में फॉर श्योर. तो आप उसको कैसे एड्रेस करना चाहोगे? सो दैट इज वेरी करेक्ट, क्योंकि एक पेरेंट के लिए बात एक्सेप्ट करना कि उनका हमारे यहाँ पे हम लोग बहुत एक्सट्रीम में सोचते हैं. अगर हमारे बच्चे को चाहिए मेंटल हेल्थ असिस्टेंस, उसको साइकोलॉजिस्ट के पास काउंसलिंग के लिए भी जाना है, तो हमारा सिंपल एसोसिएशन है कि तू क्या पागल हो रहा है, तेरा क्या दिमाग खराब हो रहा है. हम हर चीज को बहुत एग्जैजरेट करते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट इट एज अ प्रॉब्लम. अब मुझे बुखार है तो मैं रोज सुबह 6 बजे उठ के वॉक पे जाऊंगी, इससे मेरा बुखार नहीं ठीक हो जाएगा.
सिमिलर इज विद मेंटल हेल्थ। अगर किसी को एंजाइटी है, आप उसे बोल रहे सुबह 6 बजे उठ वॉक पे जा, बट उससे उसका इशू एड्रेस नहीं हो रहा है, राइट? यू डोंट टेल पीपल विद सीरियस इलनेस यू डोंट नीड मेडिकेशन, तुम्हारे बस इट इज ऑल इन योर हेड। क्योंकि एक ऑर्गन जो आपकी पूरी बॉडी कंट्रोल करता है, आप उसके इश्यूज एड्रेस करने में इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। सो स्टिग्मा तो है, बट इसमें पेरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए, या जो भी रेलेवेंट गार्जियंस है उनको ये बात समझनी चाहिए कि सीकिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग डज नॉट मेक समबडी मेंटली इल। इट इज जस्ट दैट हमारी एवरीडे कंफ्यूजन्स हैं, और पेरेंट्स और बच्चों में उतना रैपो ही नहीं है, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं साथ में स्पेंड कर रहे हैं, या उतना कंफर्ट ही नहीं है कि बच्चे वो बात घर पे कर पा रहे हैं। तो इफ दे आर गोइंग टू समबडी हु इज क्वालिफाइड इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऐसे अनऑथराइज्ड एडवाइस, क्योंकि ऑनलाइन बच्चों को बहुत पागल बनाया जाता है ये सब चीजों के मामले में। तो आई थिंक पेरेंट्स शुड बी लिटिल सपोर्टिव ऑफ इट, क्योंकि अगर आपका ब्रेन नहीं चल रहा है, यू हैव नथिंग इन लाइफ, राइट? सो फॉर समथिंग दैट कंट्रोल्स योर एवरी एस्पेक्ट, आप उसको कैसे निग्लेक्ट कर सकते हो? दिस इज समथिंग पेरेंट्स शुड थिंक, ठीक है? और अगर इतना टैबू है, आपके लिए 4 लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना बच्चा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज ओके इफ 4 people say that a kid is crazy than having a dead kid, honestly. So I think parents should take this seriously and take this also counseling. Schools should do these initiatives, and I think psychologists community also should keep some open spaces for these young children who can't really convince their parents for allowing them to seek therapy. Okay, that's great. Such a good advice. So now आप इतने लोगों के लिए inspiration, like for me, मैंने जब MNSS circuit join किया था, I was like Kashish Didi is like inspiration for me. तो we all know कि आप गुजरात में रहते हो, and आप ऐसे MUNs के साथ साथ अपनी स्टडीज भी मैनेज करो। एंड मी ऑनेस्टली जब मैंने MUN सर्किट ज्वाइन किया था, फिर इतने सारे मेरे दोस्त हैं, उनको इतनी ज्यादा दिक्कत होती है टू मैनेज देयर को-करिकुलर्स विद देयर स्टडीज। सो लाइक व्हाट्स दैट वन पीस ऑफ एडवाइस जो आप आज के यूथ को देना चाहोगे? सी आई थिंक हम लोगों को एकेडमिक्स और को-करिकुलर बैलेंस करने में इशू इसलिए होता है क्योंकि हम अपने दिमाग में ना हर चीज को विलेनाइज कर देते हैं, या बहुत एग्जैजरेट कर देते हैं, और हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस नहीं ढूंढते, विच इज फाइन बिकॉज वी आर इन अ डेवलपिंग एज। आपको एंजाइटी होती है, मैं सब कैसे करूंगा, बट कभी कभी मोर देन जस्ट लीविंग एवरीथिंग, यू शुड सिट विद योरसेल्फ। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग ना डिसीजंस नहीं लेते, हम बस जो हमें नियरेस्ट पॉसिबल बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिख रही है अपने बिहेवियर की, उसे अडेप्ट कर लेते हैं। वंस यू सिट विद योरसेल्फ, आप 4 प्लान बनाओ, क्या ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं तो ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं तो ऐसे हो सकता है। अगर वो चारों प्लान में से कुछ काम नहीं कर रहा है, या वट एवर नंबर ऑफ प्लान यू वांट टू मेक, देन यू कैन थिंक ऑफ मेकिंग अ चॉइस। बट अदरवाइज द प्रॉब्लम इज नॉट स्टडिंग, द प्रॉब्लम इज टेकिंग दैट फर्स्ट डिसीजन कि अब मुझे पढ़ने बैठना है, ठीक है? एक बार आप पढ़ने बैठ जाते हो तो फिर तो पढ़ाई ऑटोमेटिकली हो जाती है। और अगर आप अपना डे प्रॉपरली प्लान करते हो, जब आपके लिए 2 चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं और आपको दोनों को करने का मन करता है, तो ऑटोमेटिकली आप प्लान करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या करती थी, मेरे लिए सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है फोन। जो मेरे साथ कनेक्टेड है, दे ऑल नो कि आई पोस्ट अ लॉट ऑन सोशल मीडिया। सो व्हाट आई डिड वाज आई यूटिलाइज दैट वेरी फोन एज समथिंग दैट विल मोटिवेट मी। तो मैंने क्या करा, एक 75 हार्ड डे चैलेंज लिया था अपनी एंट्रेंस से पहले, जिसमें मैं अपने फोन को यहाँ लगाती थी, टाइम लैप्स रिकॉर्ड करके 2 घंटा एक स्ट्रेच पे पढ़ती थी। अब मेरी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन मुझे मॉनिटर कर रही है, और मेरे को बहुत ज्यादा कि लोग क्या सोचेंगे वाला पहले एक ओपिनियन पर्सपेक्टिव था कि अरे यार अब तो सोशल मीडिया पर डिक्लेयर कर दिया है, अब सब क्या सोचेंगे। तो आई यूटिलाइज दैट फियर कि व्हाट विल एवरीबडी थिंक अबाउट मी in my benefit by studying in front of that camera and posting it every day, and उसकी वजह से मैंने काफी सारे एंट्रेंसेस क्लियर करे। तो आई थिंक everybody needs to just sit with themselves, make a plan and then try it, ठीक है? आप ये जो सोचते रहते हो और कुछ करते नहीं हो, it's just all thinking and words, no action। तो ट्राई करके देखो, नहीं होगा तो क्या होगा, इतनी बड़ी लाइफ है, गलती करने के लिए हमने दूसरे बच्चों के बारे में बात की जो मेंटल हेल्थ इश्यूज से से फेस करते हैं। तो आपने कभी ऐसे मेंटल हेल्थ इश्यूज से कभी फेस किया होगा? मेरी एक प्रॉब्लम है कि आई टेक ऑल द स्ट्रेस अवेलेबल इन द वर्ल्ड फॉर एवरीबडी, ठीक है? किसी और कोई मुझे, एक तो अ लॉट ऑफ किड्स एंड पीपल ऑफ माय एज आल्सो कम टू मी टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स।
राइट। तो मैं सबकी प्रॉब्लम्स का स्ट्रेस लेती हूँ कि अरे अब इसके साथ क्या होगा, हाउ विल शी डील विद इट, हाउ विल वी डील विद इट, दिस इज अ पैटर्न, ठीक है। एंड फॉर पीपल लाइक मी हु आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग लाइक अल्कोहल और एनी सब्सटेंस, हमारे लिए एक हैप्पी रिजॉर्ट है फूड। यूज्ड टू एंगेज अ लॉट इन इमोशनल ईटिंग, ठीक है, स्ट्रेस ईटिंग, so much that in last 3 years I have gained around 30 kgs because of stress eating, क्योंकि लास्ट 3 साल बहुत स्ट्रेसफुल थे, क्योंकि एकेडमिक्स या सब कुछ एक ट्रांजिशन पीरियड था। देन आप जब शिफ्ट करते हो तो एडजस्टमेंट इश्यूज बहुत आते हैं, सो ऐसा मेरे साथ था। देन आई वी वर्क इन अ स्पेस वेयर एंड क्रिटिसिज्म इज वेरी कॉमन, सो क्रिटिसिज्म ये सब चीजें बहुत स्ट्रेसफुल होती थी to an extent wherein I personally also had a lot of identity crisis, self, मुझे कभी कभी अपनी लाइफ पर्पसफुल पर्सनली नहीं लगती थी। So recently I have also started to seek therapy, ठीक है, and it is working pretty well for me. I am able to challenge my maladaptive thoughts and work on them, and I think so far in life whatever issues I have faced, I have personally managed all of them except for one, that is emotional eating and my health concerns. So now after therapy I have also started to take small steps towards that as well, which I think is okay. See, I am a psychologist and I am not at all hesitant. I'll become a psychologist in 1 year or less than that. And I'm not hesitant about taking therapy because I know that for me to fix other people deal with their problems, I should myself be in a sane headspace, right? So I have started to take therapy. My parents are very supportive about it. They are very supportive about all my initiatives towards my health and everything. So I think issues हैं, but if you are willing, you try, then everything can be solved. Rightly said. Like आज के यूथ को ये चीज पे like ऐसा शेम नहीं होना चाहिए कि यार हम थेरेपी सीख करने जा रहे हैं, सोसाइटी शुडंट पुल देम डाउन। ओके, तो आप जैसे नोविसेस के फाउंडर हो, एवरीबडी नोज दैट, सो लाइक आपका क्या ऐसा इंस्पिरेशन था टू स्टार्ट नोविसेस? ओके, ऑनेस्टली नोविसेस ऐसे ही मतलब रैंडम प्लान था। सो कोविड चल रहा था, अराउंड कोविड से पहले की बात है, 2019 में मैं ऑफलाइन एमएल जाती थी, तो एक कॉन्फ्रेंस में मैं गई थी, वो प्राइवेट कॉन्फ्रेंस थी, दे वर वेरी नाइस, हॉस्पिटेबल, तो आई थॉट कि हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो 2019 से आई थॉट कि ये एस्टैब्लिश करेंगे। फिर कोविड आ गया, कोविड में खाली बैठे थे, तो सोचा कि चलो ऑनलाइन करा के देखते हैं पहले हाउ इट गोज। हमने स्टार्ट करा नर्सेस, एंड वन थिंग दैट हैज ऑलवेज बीन माय इंस्पिरेशन इज यूटिलाइजिंग माय ईगो इन अ राइट वे। ईगो इज अ वेरी नेगेटिव टर्म, ठीक है, बट अगर आप उसको खुद को इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हो, देन इट कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो मुझे ये आइडिया दैट समबडी विल अंडरमाइन माय पोटेंशियल नहीं है, तो टू प्रूव माय पोटेंशियल आई स्टार्टेड कि चलो लेट्स डू इट, ठीक है। पहले तो इसे मजे मजे में किया था, देन जब आप ग्रो करते हो किसी भी फील्ड में, कहीं पे भी, तो यू सी दैट पीपल स्टार्ट टू पुल यू डाउन, क्रिटिसाइज, या बोलते कि इसके बस की नहीं है। सो दैट स्टार्टेड टू हैपन अ लॉट, ठीक है। स्पेशली अगर मैं एमएनसी की बात करूँ, बहुत ही मेल डोमिनेटेड एरिया है, ठीक है। तो मुझे था कि अब इनको तो गलत प्रूव करने की बारी है। सो वी डिड आवर फर्स्ट एडिशन, हमसे एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस क्लैश कर रही थी, दे हैड टू शट डाउन बिकॉज वी हैड ऑल द पार्टिसिपेंट्स कमिंग इन। देन ऐसे वी केप्ट ऑन ग्रोइंग ईयर बाय ईयर, एंड देन इससे भी, ऑल्दो दिस ईगो हैज हेल्ड मी अ लॉट, बट आई वुड नॉट रिकमेंड इट टू एवरीबडी। क्योंकि क्या होता है, जब आप हर चीज को अपने पोटेंशियल पे एक क्वेश्चन की तरह लेते हो, तो आप हमेशा कीड अप रहते हो, हमेशा एक आप रिलैक्स नहीं होते लाइफ में। आपको है कि अरे मुझे सबको गलत प्रूव करना है। सो आई हैव ऑल्सो थॉट ऑफ वर्किंग ऑन इट, एंड आई हैव स्टार्टेड टू वर्क ऑन इट, एंड आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि आप सब भी ये मत करो, बी वेरी श्योर ऑफ वॉट योर आइडेंटिटीज। अभी मैं यहाँ पॉडकास्ट में बोल रही हूँ कि आपको आइडेंटिटी पे काम करना है, बट मेरे को किसी ने ऐसा पॉडकास्ट नहीं दिखाया था जहाँ पे मुझे पता चले कि आई हैव टू वर्क ऑन माई आइडेंटिटी, अंडरस्टैंड हु आई एम, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डाउटिंग माई सेल्फ एंड थिंकिंग अबाउट फॉर पीपल व्हाट दे विल से अबाउट मी। सो आई थिंक मेरी जो मोटिवेशन थी या मेरी जो इंस्पिरेशन थी टू प्रूव माई सेल्फ, ठीक है, टू एन एक्सटेंट होनी चाहिए, बट इट शुड नॉट बी मालएडाप्टिव कि वो आपकी एवरीडे फंक्शनिंग खराब कर रही है, आपको इतना स्ट्रेस दे रही है कि आप स्ट्रेस ईटिंग कर रहे हो। इट शुड नेवर रीच टू दैट लेवल। तो
आजकल की सोसाइटी में भी एक टैबू है कि मेल वुमेन से बेटर होती है, तो ऐसा थोड़ा इंडियन सर्किट में भी है कि ईवीज ज्यादातर मेल को होना चाहिए, जो वुमेन ईवीज होती है उनको इतनी ज्यादा ऐसे रिस्पेक्ट वगैरह नहीं मिलती, तो आपका उस पर क्या टेक है? ठीक है, तो लेट देम से, बट देन आई टेल यू समथिंग। तो मैं जब इनिशियली आई थी ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट था, ठीक है। आई यूज्ड टू चेयर अंडर पीपल जिनको मैं सिर्फ हाफ, मतलब जो बहुत बेसिक चीजें नहीं बता पा रहे थे, विच आई कुड टेल बट आई कुडंट से दैट इन द कम्युनिटी। मुझे पता है कोई अपनी ईगो पे ले लेगा, बट इस चीज से डील करने का एक ही तरीका है, वो है डटे रहो, ठीक है, ढीठ बन जाओ। अगर आपसे कोई पंगे ले रहा है उसे लेने दो, आप ढीठ बन जाओ। Now there are 1,000 people who would say weird things about me, crazy things जो मैंने कभी करी नहीं है, बट कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाया, बिकॉज आई नो कि हाँ मैं खड़ी हूँ, ठीक है। आप मेरे बारे में बुरा बोल सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो, बट यू कांट स्टॉप मी, बिकॉज आई नो व्हाट आई एम इज प्योरली बिकॉज ऑफ हाउ मच आई नो व्हाट माई स्किल सेट्स आर, नॉट बिकॉज मैं किसी को प्लीज कर रही हूँ कि प्लीज मुझे बिठा दो, या किसी को बोल रही हूँ आप मेरे भैया हैं, आप मेरे सीनियर हैं, आप मेरी दीदी हैं। नहीं, इफ यू वांट टू ग्रो अप इन लाइफ, डू इट ऑन योर ओन बेसिस, बी सो क्वालिफाइड। मैं अभी भी कमिटीज करने जाती हूँ, मुझे लगता है मुझे कुछ नहीं आता है, मैं पढ़ती हूँ बहुत देर बैठ के, ठीक है। मुझे किसी ने कभी मेंटोर नहीं करा, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुझे बहुत टाइम लगा टू डू समथिंग गुड हियर, ठीक है। तो मैं ट्राई करती हूँ एक तो बाकी बच्चों को करूँ, बट स्टिल मैं अभी भी बहुत पढ़ती हूँ, बहुत चीजें रीड करती हूँ। अगर मुझे अभी भी लगता है कि मेरी नॉलेज में गैप है, आई डोंट माइंड एडमिटिंग, ठीक है, बट आई नो कि वॉट एवर आई एम डूइंग, whatever is my capacity currently is purely because I have the required skill set. कॉन्फ्रेंसेज में बेस्ट फीडबैक दे रही हूँ, ठीक है, अपनी कॉन्फ्रेंस में बच्चों को अच्छा हॉस्पिटैलिटी दे रही हूँ, बहुत लोगों को मेंटोर कर रही हूँ, और साथ ही साथ आजकल एक नया ट्रेंड भी मैंने स्टार्ट करा है, वो है कि मेजोरिटी पैशन फील होता है कॉन्फ्रेंसेज का, तो वो भी कर रही हूँ। सो कहने वाले तो कहेंगे आप डटे रहो, अड़े रहो, जो आपको करना है करते रहो, ठीक है। इफ यू हैव द राइट स्किल, नोबडी कैन स्टॉप। तो जब मैंने इंडियन सर्किट ज्वाइन किया था तो मेरे लिए इतने लोग इंस्पिरेशन थे, आप हो गए, शिवांगी भी हो गए, तो जब आपने इंडियन सर्किट ज्वाइन किया था तो लाइक आपके लिए कौन इंस्पिरेशन था? सो देयर इज नो सिंगल पर्सन आई यूज्ड टू लुक अप टू, कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो इतना कनेक्ट नहीं होता था। अभी आप लोग उनसे बात कर पाते हो, पर उस टाइम में हम लोग बहुत डरते थे, जो हमारे सीनियर्स होते थे, एडीज होते थे, कि उनसे इतना पर्सनल कनेक्ट नहीं बना पाते थे। बट मेरे लिए इंस्पिरेशन वो हर इंडिविजुअल है जो कुछ कर रहा था उस टाइम पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट, इंस्टेड ऑफ डूइंग इट ऑन द बेसिस ऑफ हाउ गुड दे आर एट सोशल लाइफ। एंड मेरा ये नोशन ऑफ इंस्पिरेशन सिर्फ सीनियर्स से नहीं है, आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम एवरीबडी। कोई मुझे एक न्यू वेंडर कॉन्टैक्ट बता देता है, कोई मुझे एक न्यू आइडिया दे देता है, जैसे पॉडकास्ट शूट कर सकता है कॉन्फ्रेंसेस के लिए। सो यू हैव अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू एंड एवरीबडी टीचेस यू समथिंग न्यू। सो आपको सबसे इंस्पिरेशन ड्रॉ करनी चाहिए, बिकॉज जो सबसे स्मार्टेस्ट और सबसे वाइटेस्ट लोग होते हैं वो होते हैं जो दूसरों के एक्शंस, मिस्टेक्स से सीखते हैं। एंड आई थिंक आई एम ट्राइंग टू डू दैट समहाउ। दैट्स ग्रेट। ओके, जब हम इंडियन सर्किट में आते हैं तो कोई होता है जिससे हमें थोड़ी बहुत ऐसे अट्रैक्शन होती है, या फिर समटाइम्स प्रोफेशनल लाइफ टेक ओवर पर्सनल लाइफ। तो आपके साथ अभी ऐसा हुआ है कि कोई सेक्रेटरीट मेंबर, डेलीगेट या फिर ईडी की तरफ थोड़ा? Not really. I don't know if I answer anything. It would again, be very disclose. It would, disclose a lot about my personal life. So I don't want. But yeah, there have been amazing people. I've been very close to. They have been very nice to me. But then obviously, not every time things work out. So we parted our ways. But I will not say more about that. हमने हमेशा देखा है कि जो नोविसेस है वो छोटे छोटे कॉन्फ्रेंसेस, स्मॉल कॉन्फ्रेंसेस जो होते हैं उन्हें सपोर्ट करता है, एंड कभी लाइक कॉन्ट्रोवर्सीज विद द टाइकून्स लाइक जो सर्किट के उनके साथ नहीं होता। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? ठीक है, पहली बात सपोर्टिंग की, तो देखिए वन थिंग आई एम वेरी श्योर अबाउट, एंड दिस इज माय आइडिया ऑफ लाइफ, कि यू हैव टू बी हम्बल नो मैटर व्हाट। आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ, ठीक है, यू विल गेट व्हाट द ऑलमाइटी गॉड हैज डिसाइडेड आपको मिलना चाहिए। उसके बियॉन्ड आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर आप किसी और को कुछ दे रहे हो, वो आपसे कुछ खींच नहीं लेगा, रादर किसी और की हेल्प करेगा कुछ बनाने में। तो अगर आपको भगवान ने एक पोजीशन दिया जहाँ आप इतने केपेबल हो कि आप किसी को गाइड कर सकते, जैसे आप अभी एस्पायरिंग इंडिया इनिशिएटिव देख रहे हैं, प्रियांशु भैया है, आदर्श है, वेरी अमेजिंग पीपल, हैव गुड
conversation with them. They have also invited me to one of their conferences. So पहली बात, जब इतनी बड़ी स्पेस है जहाँ सब अपना अच्छा करके एक्सेल कर सकते हैं, एवरीबडी कैन ग्रो, देन क्या जरूरत है एक दूसरे को काटने की? जब आप सी द वन थिंग वी हैव टू प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड इज दैट एमयूएन्स आर वेरी वेरी वास्ट मार्केट स्पेस ऑनेस्टली बट टॉकिंग बिजनेस सेंस. सो एवरीबडी कैन डू अमेजिंग. बट अगर आप अनहेल्दी कॉम्पिटिशन में लग जाते हो, किसी को काटने में लग जाते हो, तो फिर कहीं नहीं जा पाओगे. ठीक है, सो इट्स बेटर जब साथ में सब मजे कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट. एंड पर्सनली बहुत लोग हमें भी कैटेगराइज करते हैं कि नॉवेल्स इज वन ऑफ दी बिग कॉन्फ्रेंसेस. इट इज ओनली बिग एंड इट विल ओनली बी बिग टिल द टाइम आई एम हम्बल. द डे आई एम नॉट बिग, इट विल ऑल फॉल. ओके, तो हमने ऐसे बहुत सुना है एमयूएन सर्किट में कि आपको ऐसे लोग कंट्रोवर्सी क्वीन बुलाते हैं. तो लाइक आप इस टाइटल पे कैसे पहुंचे एंड यू नो ऐसा क्या आपके आप इसे अमेंड करने का सोच रहे हो? ओके, मुझे सी मैं वो एक होता है ना कि पता नहीं कैसे भी कोई गलत सिचुएशन होती है, मैं अपने आप आगे आ जाती हूँ. सो मेरे ऑलमोस्ट सबके साथ टाइज है. तो जब आपस में लोगों की कॉन्फ्लिक्ट होती है तो मैं तो वहां पे फंसती हूँ. उसके अलावा आई एम वेरी ब्लंट. मुझे थोड़ा मस्ती करने का बहुत शौक है. ठीक है, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई डू ऐसे मस्ती के उससे, ठीक है, पीपल टेकन ऑफेंस, या फिर कहीं ना कहीं इसमें ईगो प्ले भी है कि आई एम वन ऑफ द वेरी फ्यू फीमेल हु आर फीमेल इन द सर्किट हु आर डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ. सो उससे भी बहुत लोग थोड़ा एंटी एटीट्यूड है, तो मैं अननेसेसरीली ड्रैग करा जाता है मुझे कॉन्ट्रोवर्सीज में. बट आई पर्सनली डोंट माइंड. ठीक है, बिकॉज आई थिंक एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी. तो वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, इट्स फाइन. पीपल हु आर कम्पीटिंग विद मी कैन हेट मी, बट किड्स हु कम टू माई कमिटीज, जिनको पता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आई कैन जस्ट सिट एंड डू माई जॉब इन अ लेजी मैनर एंड गो, उन्हें पता है कि मैं कैसे खड़े होकर एक एक घंटा बच्चों को सब पढ़ाती हूँ. सो दे लव मी एंड दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी. बाकी कंट्रोवर्सी का थोड़ा मसाला तो लाइफ में होना ही चाहिए, वरना बोरिंग हो जाएगी. It's time for our control plus alt plus rapid fire round. Are you ready? One word to describe mental health today. Need of the hour. Most underrated self-care activity. Writing down your thoughts. A myth about psychology you want to bust. We can't read your minds. I wish I could. Last show you binge watched. Suits. Your go-to stress buster. Laughing at machine for tea. अगर आप इस फील्ड में नहीं होते तो आप क्या करते? या तो मैं एक बिजनेस कर रही होती, या फिर मैं अपना एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट चेन चला रही होती. One quote you live by. Future belongs to those who believe in beauty of their dreams. एक ऐसा कोड जो आप अपने younger self को देना चाहते हैं? कि have some faith in yourself. World is already very harsh to you. You be kind to yourself. Positive publicity और negative publicity? तो मिल जाए अच्छी है, बट आजकल मुझे बहुत नेगेटिव मिल रही है, so I don't mind that either. That's awesome. You nailed it. Before we wrap up, what's that one message you would like to give to every young listener out there to take away from today's episode? Right. Firstly, be kind, be humble. Secondly, खुद पे भरोसा रखो, क्योंकि in your toughest time, it was you who pulled yourself out of it. Have some faith. Vouch for your own self, even when the whole world is hating. Be your biggest supporter, be your biggest lover, and move on, because life is all about moving on. In ups and downs, at lowest of your points, you will have to stand up for yourself because you have been fighting and doing amazing. That's such a great message. Thank you so much for being here and sharing your insights. I am your host Niharika Bajaj, and we'll see you next time with same mind, same mission. Until then, keep growing and keep questioning and never underestimate your voice because it does matter.